Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, brothers and sisters, and शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सेशन ज्वाइन करने का। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आप लेट आते हैं, अभी थोड़ी देर गुजरेगी और फिर लोग आ जाएंगे, लेकिन ये क्लास को क्लास ही समझ के अगर हम लोग टाइम पे आने की थोड़ी सी कोशिश कर लें तो दैट वुड बी ग्रेट। तो सबसे पहले मैं There's a little bit of a noise. Okay, I think someone's mic's open. Is it better? Yes, better. Yeah. Okay, so my name is Shazia Tariq, and you know me now, I think. Yeah, I'm here to help our host, Ma'am Farida, today, and our speaker, you will know. Yeah, we have been telling you for last 3 days that what are we going to learn today. We are going to learn about physical health. Let's see what's new for us today, inshallah. And our Ma'am Farida is going to tell us something about the voice of the people. Some people don't know what is VOTP, and we often talk about it, voice of the people and VOTP. So I would like Ma'am Farida, if you can just give us a little bit of idea what is the voice of people, and yes. Thank you, Sister Shazia. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for having those of you who've got your videos on. I'll encourage all of you to do that. You know, it's a classroom environment. It's very essential that we connect with faces. Our request will continue to be there, that you show your face and just as we do. So and it just connects, you know, ज़्यादा मोहब्बतें पैदा होती हैं, ज़्यादा communication, relationship stronger होते हैं, you know, just by being able to see each other. So that said, and I will keep saying it, and so will Sister Shazia. And I think one day we'll have all the videos on, inshallah. Inshallah. So the voice of the people के बारे में आप जानना चाहते हैं, ये है क्या चीज? What is this project? You want to know about it? You see, now I can see Mahajabeen saying yes, because she's got her video on. बाकियों का मुझे पता ही नहीं है, interested हैं या नहीं है. You know, it makes such a difference, and it's just good manners as well, to be very honest. So what is VOTP? It stands for Voice of the People, VOTP. And we use the other term is FYT, Find Your Truth. उस पे आप कोशिश कर रहे हैं. VOTP जो है वो मेजर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आता है Find Your Truth. So VOTP क्यों बना? उसकी क्या वजह है? Well, basically, the Palestine situation woke us up. It woke everybody up. And it is a good thing that we woke up. Allah Ta'ala ki blessing hai कि हम पे ये, you know, we realized there was something wrong. The world had gone in the wrong direction. Muslims were being, you know, they were being killed. Genocide is there. And we cannot do anything. We are so helpless. And we started off very thinking we could do something. We all thought we could do something. And from our side, we contacted the United Nations, we contacted leaders of every country, and to say that we had put them in power. And we wrote to United Nations General Secretary and all the members of the United Nations, okay, you represent us. And we don't want what's happening in Palestine to continue. And you are supposed to listen to us, not do whatever you want. And then we gradually realized कि हमारी आवाज में तो कोई power ही नहीं है. Right? And why doesn't it have power? Because we're not united. We are not united in our communities. We are not united in our country. We are not united in the world. और हम लोगों ने उठा के इन लोगों को पावर दी है जो बैठे हुए हैं लीडर्स, and now they have their own agenda.
उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और हम उनको कहते हैं हम इसे डिसएग्री करते हैं, तो दे डोंट केयर टू हुड्स वेदर वी एग्री और वी डिसएग्री. So from that we came about with the idea of voice of the people, क्योंकि सारी पावर जो है वो लोगों के पास है. The only problem is we are not united and we are not trained. We are not responsible people. We are not responsible citizens. We are not responsible at the world level. हम अपनी दुनियाओं में फंसे हुए हैं, अपने चीजें करते रहते हैं and hoping ये leaders सब कुछ सही कर लेंगे, which they don't, right? They're not doing that. So the whole idea is that we empower ourselves. हम में जो कमी है, जो हम एज अ मुसलमान हमें जैसे होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हम अपनी खुद को सही करें, अपनी फैमिली को सही करें, अपनी कम्युनिटी को सही करें, अपनी कंट्री को सही करें, एंड वी टेक दैट पावर बैक अल्लाह ताला ने हमें दी है, एंड वी बिकम अकाउंटेबल इन दिस लाइफ एंड वी बिकम अकाउंटेबल in आखिरत for how we spent our life. So that is what VOTP is about. और जो courses आप कर रहे हैं वो आपको उस तरफ ले जा रहे हैं, so that we can play the right role for ourselves, for our families, in our communities, and in the world. So does that answer the question? What is VOTP? Yeah. Does it give you an idea? Yes. No. Please share. Chat box question. We're waiting for some kind of a response. I can't see your faces, so I need to know. Does it answer, your question of what is VOTP? Why are we doing all this? And why is it necessary? Any more yeses or nos? Nahi samajh aayi? What? समझ आई पुष्टि भाई? Thank you, Bushra. Thank you, Paul. Good to know you understood it. Anybody else? Everybody understood it? Okay, good. Thank you. और लोग जवाब नहीं दे रहे, क्यों? This is a classroom environment. Please speak up. Right? You can raise your hand. Even if you can't speak, you can raise your hand. It's just, it's necessary for you to participate. Okay. All right. Thank you for all those who are answering and encouraging everybody else to also participate. A little bit more, please. Sabat, कोई खास question है आप पूछना चाहते हैं, please पूछें. नहीं, मैं थोड़ा सा मतलब भूख से बाहर गई थी, मुझसे सुन नहीं सकी. हाँ, we're end में cover. We'll ठीक. cover it towards the end. Sister Farhana will also speak on this. Okay, so now let me get on with our real topic, which is we are talking about holistic fitness. So this is a topic close to everybody's heart because on it depends our own spiritual progress. और last sessions में हम इस पे बात करते आए हैं कि हमें spiritually ज़्यादा conscious होना है, and very much linked to it at the base of it is physical fitness. So we have our guest speaker today, Brother Saad Mayo, and he has a passion for this area. He's been working on it since the last 15 years. And in the last 5 years, he's been training regularly people and handling their problems that have got to do with physical fitness. So we called him today to speak to us and to guide us and to get our questions answered so that we can get physically fit in life. So please welcome Brother Saad, and let's start the session. Assalamu alaikum everyone. कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं? Thank you ma'am. Thank you ma'am for calling me today. इंशाल्लाह आवाज रिपीट सबके पास हो रही है या सिर्फ मेरे पास हो रही है, प्लीज बताइएगा. Your voice is fine, Brother Saad. It's okay. Okay. ठीक है. तो इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इस टॉपिक को लेके, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये सबका एक जिंदगी की प्रॉब्लम भी है. करंटली हर बंदा इसके किसी न किसी
लेवल पे इशू में है कि मतलब किस तरह से हम फिजिकली फिट हो सकते हैं। तो फिटनेस को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे जरूर कि फिटनेस है क्या चीज़। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप इसको ऐसे समझे कि आर्मी का फिटनेस टेस्ट जो है वो स्विमर के लिए कभी भी एलिजिबल नहीं हो सकता। स्विमर का फिटनेस टेस्ट अलग होगा और आर्मी की जो ट्रेनिंग होगी उसका एक फिटनेस टेस्ट अलग होता है। आर्मी के लिए उनका फिटनेस टेस्ट होता है और जो स्विमर है उनके लिए उनका अपना फिटनेस टेस्ट होता है। ठीक है, अब ये चीज़ तो इन दो फील्ड्स के लिए हो गई। अब घर के जो लोग हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर जो लोग हैं 9 to 5 जॉब करते हैं, सिंपल कोई ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी, तो उनकी फिटनेस का टेस्ट क्या होगा? उनकी फिटनेस का टेस्ट ये होगा कि किस तरह से वो अपनी डेली रूटीन की चीजें, यानी कि ऑफिस से आना, लेट्स सपोज ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग के बाद घर आना, बच्चों को सही से टाइम देना, सारी चीजें हैं। बच्चों के साथ खेलते हुए कैसा ना थोड़ा सा झुके तो आपकी कमर में दर्द हो जाए, ये चीज सारी वो है जो आपकी फिटनेस के अंदर आएंगी। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे तो आप फिजिकली फिट हैं अपने पेरेंट के रोल के लिए। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स मीन आप फिजिकली फिट नहीं है इस पेरेंट के रोल के लिए, तो हमें उसके ऊपर वर्किंग करनी। अब ये इसके अंदर चंद चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक चीज है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, यानी कि उसका ताल्लुक होता है हमारे दिल से। दिल से मुराद क्या है कि आपने देखा होगा जब भी आप लोग वॉकिंग करते हैं तो आप नॉर्मल वॉकिंग पे दिल की धड़कन तेज नहीं होती, लेकिन जिन लोगों के जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा वो, तो वो थोड़ी सी वॉकिंग करते हैं वो फौरन हाँफना शुरू हो जाता है, तो यानी कि उनकी जो हार्ट की हेल्थ होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो जो डेली वॉक करने वाला है वो नॉर्मल अगर पेस पे वॉक करता रहे तो उसकी हार्ट बीट इतनी जल्दी तेज नहीं होती। तो इसे कहते हैं कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस। ठीक है, उसके बाद होती है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है? यानी कि जो मेल्स में ज्यादातर पाई जाती है, खवातीन में होती है लेकिन कम होती है। अल्लाह ताला ने इस चीज मर्द के अंदर ज्यादा रखी है। खवातीन के अंदर क्या होता है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। वो मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी चीज को, हैवी चीज को लिफ्ट करना, इसे कहते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। यानी कि हैवी सामान लिफ्ट करना है, कोई सामान उठा के देना है, कोई इधर से बच्चों को उठाना है, सारी चीजें कैरी करनी है, तो वो चीज आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ में, कि आपके मसल में इतनी स्ट्रेंथ हो कि आप किसी चीज को लिफ्ट कर सके। उसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी, ये होती है फीमेल्स में ज्यादा। फीमेल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, अक्सर आप देखिए बचपन में फीमेल्स फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कि हम लोग रूटीन में नहीं कनेक्ट रहते तो इस वजह से वो हम चीज लूज कर जाते हैं। लेकिन मेल्स अगर फिट रहें भी तो हम, जैसे कि मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डेली बेसिस पे अगर मैं स्ट्रेचिंग ना करूँ तो हालांकि मैं जिम वगैरह सब कुछ करता हूँ लेकिन मेरे मसल जो है स्टिफ होना स्टार्ट होंगे, इवन कि मेरी बॉडी की एफिशिएंसी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, मुझे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, मेरे मसल जो है ना प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे। तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन रखने के लिए आपने एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। फिर है हमारे पास मस्कुलर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या है कि लेट सपोज के अगर आप मुझसे बोलें कि आप 100 मीटर रेस भागें तो मैं फुल स्पीड में भागूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे अब आप बोलें कि 100 नहीं 500 मीटर तक भागे, तो अब यहाँ पे जब मैं उस चीज को 100 मीटर की स्पीड को कंटिन्यू करूंगा आगे, तो ये मेरी एंड्योरेंस लेवल है। यानी कि लेट सपोज आपने बोला कि एक दफा हैवी चीज उठा के लिफ्ट कर दे, रख दे यहाँ पे, तो मैंने लिफ्ट कर, लेकिन आपने बोला अच्छा रुके आप इसे यहाँ पे रखे, थोड़ी देर आप होल्ड करके रखे, मैं कुछ सामान यहाँ से हटा लूँ। अब मेरा वहां पे मसल्स का एंड्योरेंस टेस्ट हो रहा है कि मेरा मसल कितने देर एक एनर्जी को या किसी चीज को होल्ड करके उस पोजीशन में रोक सकते हैं। ये हमारी एंड्योरेंस के ऊपर आते हैं। उसके बाद जो है हमारी बॉडी कंपोजिशन, यानी किसी भी शख्स की बॉडी जो है उसमें क्या क्या चीज होती है, बोन्स होती हैं। फिर उसके बाद जो है आपकी बॉडी में फैट्स होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम समझते हैं कि फैट बिल्कुल ही बेकार चीज है, ऐसा नहीं है। अगर आपके दिल के पास जो फैट की लेयर होती है अगर वो खत्म हो जाए तो आपका खून जो है वो जम जाए प्रॉपरली, मतलब दिल के अंदर पंपिंग ना हो और आप जो हार्ट अटैक से मर सकते हैं। अक्सर जो बॉडी बिल्डर की डेथ होती है वो स्टीरॉयड का इतना यूज कर लेते हैं कि उनके हार्ट के पास भी फैट जो है वो कम हो जाता है। तो ये फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी चीज है मसल्स। एक चीज यहाँ पे क्लियर करता चलूं, जैसे जैसे ये टिप आप लोगों ने अपने जहन में रख लेनी, क्योंकि अक्सर लोग ये बात करते हैं कि यार बस वॉकिंग कर लोगे तो इनफ है। तो बस उसको ये जहन में रखें कि एक बात, कि आपके मसल जैसे जैसे आप एज करेंगे आपकी बॉडी मसल लूज करना स्टार्ट कर देगी, तो उसे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कि फिजिकल फिटनेस। मैम नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज। ओके, ठीक है। अब फिजिकल फिटनेस पेरेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप देखें आजकल घर के जितने मेजॉरिटी मसाइल हैं, यानी कि लेट सपोज अगर हस्बैंड जॉब से आता है तो उसके बाद वो बहुत एग्रेसिव हुआ होता है, बहुत एंग्री होता है, और मतलब वो हल्की सी बात पे फ्रस्ट्रेट होकर जो है ना लड़ाई झगड़ा 10 मसले मसाइल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बाहर से स्ट्रेस का एक लोड अपने माइंड के ऊपर लेके आ रहा है वो कहीं रिलीज नहीं हुआ। लेकिन जब हम हेल्दी होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं, अगर आप ऑफिस के बाद जिम जाते हैं तो एक तो जिम जाने का फायदा होता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस रिलीज कर देती है।
साथ ही साथ आप जब मेंटली तौर पे फिट होते हैं ना, तो आप जो है ना चीजों को, डिसीजंस को अच्छी तरीके से ले सकते हैं। आप, ऐसा नहीं होता कि किसी भी चीज में एग्रेसिव स्टांस ले लेते हैं, आप सोचते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद आपके अंदर बर्दाश्त करने की पावर भी बढ़ जाती है। आप ऑफिस से आने के बाद आप एक तो अपने ऑफिस के अंदर की चीजों को, उसको बहुत अच्छे से लेके चल सकते हैं। आपका दायरे हेल्दी माइंड होगा तो आप ऑफिस के जो भी ड्यूटीज है वो प्रॉपरली मैनेज तरीके से लेके चल सकेंगे। उसके बाद स्ट्रेस भी आएगा तो उसे भी बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको बॉडी में कोई पेन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके जिस्म में दर्द हो रहा है। आप घर में आएंगे तो आप फ्रेश फील कर रहे होंगे, तो आप अपने बच्चों को भी अच्छे से टाइम दे सकेंगे। बच्चों को अच्छे से टाइम देंगे, डेफिनेटली बच्चे भी, अच्छी तरबियत होगी तो बच्चे भी जो उनकी जो मैनर्स होंगे वो सारी चीजें इंप्रूव करती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप मेंटली अनफिट हुए, आप घर पे आए, चीख पुकार शुरू कर दिया आपने, तो उस केस में बच्चे भी सेम यही चीज रिपीट कर रहे होते हैं। आप वाइफ पे चीखते हैं, वाइफ बच्चों पे चीखती है, और फिर बच्चे पूरे घर में चीखते हैं। ये एक ऐसी साइकिल है जिसे ब्रेक हस्बैंड कर सकता है। अगर वो बाहर से स्ट्रेस को जिम में रिलीज करके आ जाए तो वो घर पे आके सुकून से रहेगा, फिर ये इंशाल्लाह स्ट्रेस साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद रोल मॉडलिंग। आप, अब ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मैं करूंगा जिसका जवाब आप लोग खुद अपने दिल में दें। रोल मॉडल, आपका बच्चा अगर कोई मूवी या कार्टून कैरेक्टर देखता है तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो उसमें जो है मोटे कैरेक्टर को या भद्दे कैरेक्टर को हीरो पसंद करते हैं? मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा किसी भद्दे या मोटे कैरेक्टर को अपना रोल मॉडल या हीरो नहीं बनाता। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप जो है अगर मोटे होंगे और आप भी बिल्कुल अनफिट होंगे अजीब से, तो आपके बच्चे को एक जो फिजिकली अपीयरेंस उससे मिलनी चाहिए थी वो रोल मॉडल, क्योंकि देखिए ये रोल मॉडल दुनिया डिफाइन कर रही है बच्चों को, हर जगह ये रोल मॉडल दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, अब वो जब घर आते देखते कि उनके पेरेंट्स तो इस वाले रोल में है ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी फिजिकल चीजों से तो ऑलरेडी आपकी प्रेजेंटेशन फेल हो जाती है। फिर उसके बाद जो है आपकी रोल मॉडलिंग नहीं होगी तो बच्चा आपकी बात सुनेंगे नहीं। ठीक है, आप अगर फिट रहेंगे, अगर आपका रूटीन है, बच्चा आपको देख रहा है कि आप जो है सुबह में जा रहे हैं और जो है जॉगिंग कर रहे हैं और बच्चों को भी साथ, तो बच्चे भी ना इस चीज को एंजॉय करेंगे और वो भी जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे तो वो आपकी इस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। यार हमारे वालिदैन ये करते हैं, हमारे पेरेंट्स ये सब चीजें फॉलो करते हैं, तो हमें भी जो है ना ये चीज करनी चाहिए। ये कोई अच्छी चीज है जिसके लिए अप्पू सुबह डेली बेसिस पे उठते हैं, अप्पू और अम्मी और मेरे नाज़मन वॉकिंग करने आते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जब बच्चे देख रहे हैं कि आप बाहर जा रहे हैं, कोई अनहेल्दी चीजें चॉइस नहीं कर रहे आप लोग, कोई फूड सिलेक्शन अनहेल्दी नहीं हो रहा, आप लोग हेल्दी चीजें ले रहे हैं, और जब आप खुद सब्जियां खा रहे होंगे और जो है आप खुद प्रॉपर चीजें डाइट ले रहे होंगे, तो बच्चे कभी भी नखरे नहीं करेंगे। जब आप खुद पास्ता, जिंगर बर्गर और पिज्जा ये सारी चीजें आप लोग खा रहे होंगे, फिर बच्चे को आप बोलेंगे बेटा सब्जी खाओ तुम्हारे लिए अच्छी, बच्चा कभी भी नहीं खाएगा। बच्चा क्योंकि आपके अल्फाजों से नहीं आपके एक्शन से सीखता है, तो आप लोग जो कर रहे होंगे बच्चा भी उसी चीज को फॉलो कर रहा होगा। अब बच्चों के लिए फिजिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझें कि आपको मैं थोड़ा सा इसकी मिसाल ऐसे समझाता हूँ कि बोन्स के हवाले से बताता हूँ कि बच्चों की बोन डेवलपमेंट का फिजिकल फिटनेस से या फिजिकल उनकी एक्टिविटी से क्या ताल्लुक है। अगर पाकिस्तान के लोगों को आइडिया कि अगर वो किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, अगर वहां पे कोई छोटा सा बच्चा जो है वो मैकेनिकल वर्क करता है, और जैसे ही वो बच्चा उस काम को करते करते कंटिन्यू करते करते उसकी एज बड़ी होती है, तो उसकी रेस्ट जो है ना, रेस्ट वो बहुत वाइड हो जाती है, क्योंकि उसके जो काम होते हैं, उसकी जो एक्टिविटी है, वो उस बात को प्रमोट कर रही होती है कि वो उसकी बॉडी जो है ना रिस्ट की बोन को वाइड करे, वरना उसकी चीजें प्रॉपरली परफॉर्म हो नहीं सकेंगी। ठीक है, इसी तरह एक जो स्विमर होता है, बच्चा बचपन से स्विमिंग करे, उसका रूटीन हो हर डेली बेसिस पे स्विमिंग करे, तो उसकी फिजिक ऑटोमेटिकली बोन सब कुछ उसी तरह से अडॉप्ट कर लेगी जिस तरह से स्विमर की होनी चाहिए। अब आप सोचिए इसी को अपोजिट कर लें, अगर आप अपने बच्चे को बिल्कुल घर में बिठा के रखें, नहीं नहीं बेटा बाहर नहीं जाओ, आपके लग जाएगी, चोट लग जाएगी, तो उससे क्या होगा, बच्चे की बॉडी वो चीजें अडॉप्ट ही नहीं करेगी। बच्चे की बॉडी देख रही है भाई ये कंफर्ट जोन के अंदर है, तो वो ना बोन डेंसिटी उसकी स्ट्रांग होगी, बोन डेंसिटी उसकी अच्छी नहीं होगी, उसके मसल्स भी अच्छे नहीं होंगे, वो बिल्कुल फ्लफी सा बच्चा होगा, और हल्का सा उससे कुछ गिरेगा तो उसे चोट लग जाएगी। सही है, तो अगर हमें बच्चों को जो है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्ट्रांग बने, तो उससे ये होगा कि वो लोग जो है ना, हम उसे थोड़ा सा बाहर जाने दें, उसे एक्टिविटीज में जाने दें। चोट लगती है, लगने दें, हमें भी बचपन में बहुत चोट लगी है, लेकिन उस चोट लगने से हम कमजोर नहीं हुए, हम बल्कि और स्ट्रांग हो गए, बल्कि इमोशनली भी स्ट्रांग हो गए, इतना है कि हमारे अंदर बर्दाश्त की ताकत जो है वो बढ़ गई, कि हमें चोट लगती है तो हम उस चीज को बर्दाश्त कर पाते हैं। आजकल के बच्चों को हल्का सा गिरते हैं, बच्चा आपको देख रहा होता है, जब जैसे ही वो गिरता है तो आप चीखते हैं तो बच्चा रोना शुरू हो जाता है, आप नहीं बोले, इग्नोर करते, बच्चे को चोट नहीं लगती। ठीक है, अब इसकी मिसाल आप ऐसे और समझ लें कि सॉरी, कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन क्या करते हैं, छोटी एज में हम बच्चे को वीक जर्म्स किसी भी बीमारी के इंजेक्ट करते हैं,
और बॉडी जो है फिर उसी जर्म्स के उससे जो है ना अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करती है, फिर वो बड़े वाले जर्म्स से भी फाइट कर पाती है। इसी तरह अगर हम बच्चों को अभी से यूज टू बनाएंगे हार्डशिप्स के लिए, जो कि आगे जाकर उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में झेलनी है, तो उससे ये होगा कि आगे जाके जब प्रॉब्लम्स आएगी उसमें डील कर सके, उनकी बॉडी ने, उनके माइंड ने वो सारी चीजें अडॉप्ट कर ली होंगी। क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ जो है आपको फिजिकली स्ट्रांग नहीं करती, आपको मेंटली भी स्ट्रांग करती। क्योंकि एक बच्चा जब बाहर जाता है तो वो बाहर जाने के बाद क्या होगा कि वो अपने दोस्त बनाएगा। अब जब दोस्त बनाएगा तो हर तरह के दोस्त होंगे, तो वो हर तरह के बच्चे को डील करना सीख रहा होगा, तो वो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो डेवलप हो रही है। अब वहां पे कुछ बच्चों से बुली भी करेंगे, ठीक है, कुछ बच्चों से तंग करेंगे, कुछ बच्चों से सपोर्ट करेंगे, तो वो सीखेगा कि यार कैसे बुली को कैसे कंट्रोल करना है, और जो मेरा फ्रेंड है उसके साथ कैसे बिहेवियर रखना है। और उसके साथ साथ जैसे बच्चा अगर खेल रहा है और लोगों को जमा करना है, अपने फ्रेंड्स को जमा करना है, वो जाके जमा करना सीखेगा, लोगों को बुलाना सीखेगा। तो ये सारी जो है ना स्किल डेवलपमेंट हो रही है उसकी अभी से। लेकिन अगर हम बच्चे की अपनी फिजिकल एक्टिविटी रोक दें और सब कुछ खत्म कर दें, तो बच्चा ये सारी चीजें जो फिजिकली उसकी बॉडी ने अडॉप्ट करनी थी, जो मेंटली बॉडी ने अडॉप्ट करनी थी, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हमें जो है जरूरी है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। और उसके साथ साथ जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल देखिए बच्चों की आदत है कि वो उन्हें जो है ना किसी चीज में इन्वॉल्व रखना जरूरी है। मैम मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मेरे गले में काफी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, मैं सिर्फ 1 मिनट में पानी लेकर आऊँ, सिर्फ 1 मिनट दीजिए प्लीज। So, please go ahead. Any questions on so far? Are you understanding it? लग रहा है आपको कि बच्चों को आई यूज्ड एक बड़े गरीब इलाके में मैंने स्कूल चलाया, एंड द चिल्ड्रन, उनकी सुबह को कंपल्सरी रखा मैंने एक्सरसाइज करना, एंड द चिल्ड्रन couldn't straighten their arms को यूं स्ट्रेट नहीं कर सकते थे, वो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके घरों में उनको वो एक्सरसाइज को है ही नहीं उसमें। So they can't stand straight, they can't put their arms straight up, they can't put their arms on the side because they're not doing any exercise. So it's so important, and we had to put that in, that routine, on the spot running, and even if it was very hot, we did it in the classrooms so that वो पूरी body में energy और vitality आ जाए. So it's so important जो बड़ा साहब कह रहे हैं, that get it done. Don't try to be so overprotective about children. बॉडी कितनी रिजिलियंट है, कितनी जल्दी अपने को रिपेयर करती है. It's such a beautiful blessing of Allah Ta'ala. आगे बड़ा साहब, ओके, अब हाँ. बच्चों के एतबार से आजकल हर जो पेरेंट्स है वो एक चीज से परेशान है, बच्चे मोबाइल से जान नहीं छोड़ते। तो देखिए बच्चों की लाइफ में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब वो हर दिन सुबह उठेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे से वो खामोशी से एक जगह बैठ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। बच्चे को चाहिए एंटरटेनमेंट, बच्चे को चाहिए गेम खेलना, ठीक है। अब मसला ये है कि आप लोग इतने फिट ही नहीं है कि आप बच्चों को टाइम दे पाए, तो इसलिए हम लोग मोबाइल दे देते हैं और बच्चा जो है फिर मोबाइल के साथ अपनी एंटरटेनमेंट करते हैं। आप कभी ट्राई कीजिएगा, आपका बच्चा कभी मोबाइल ना छोड़ो, अगर लेट्स सपोज ही और शी इज अंडर 5, तो आप क्या करें, उससे मोबाइल छीनें और उससे बोले आओ बाहर चल के खेलते हैं। आप देखिएगा वो रोएगा भी नहीं मोबाइल के लिए, वो खुशी खुशी मोबाइल छोड़ के आपके साथ चलेगा। लेकिन मसला ये आता है कि हम फिजिकली चीज़ों को टाइम ही नहीं देते, तो इसलिए बच्चा जो है ना मोबाइल के साथ, मोबाइल को अपना पेरेंट समझ रहा होता है, इसलिए मोबाइल जो सिखा रहे होते हैं वो सारी चीज़ें सीख रहा होता है। सोशल स्किल्स की अगर हम बात करें तो सोशल स्किल जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया कि बच्चे को सब चीजें समझ में आ रही, क्योंकि देखिए हम बच्चे को हर वक्त घर में रोक के रखे पे, जैसे उसकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो हम उसे फौरन हाथ पुश करते कि जाओ अब जाके तुम जॉब करो, तो वो कूप अप नहीं कर सकता सोसाइटी के साथ, क्योंकि उसने कभी बचपन से चीजों को देखा ही नहीं है कि कैसे चलती है, दोस्त कैसे होते हैं, बुली कैसे करते हैं, या आपके पीठ पीछे लोग कैसे लेके चल रहे होते हैं, तो वो कभी भी उस सोसाइटी के साथ अपना पेस मेंटेन नहीं कर सकते। तो इम्पोर्टेंट है बच्चे को बचपन से आगे निकलने दे, उसे करने दे, गलतियां करने दे, क्योंकि छोटे लेवल पे जो गलतियां करेगा वो छोटी होंगी, उसका जो है इतना डैमेज नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा फिर जब वो गलतियां करेगा तो उसका जो है डैमेज बड़ा होगा। तो बच्चे को जो है बाहर जाने दें, उससे उसके बहुत सारे इमोशनल सोशल स्किल्स और साथ साथ फिजिकल स्किल्स जो है वो खुद ब खुद डेवलप हो रही होंगे, उसकी बॉडी सीख रही होगी किस तरह के डेंजर पे कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। अब मेन चीज आती है इमोशनल वेलबींग, ये एक बहुत मेन इशू चल रहा है
कि आजकल हर बच्चा अगर आप देखिए जिद्दी हुआ है, ठीक है। वो जिद्दी क्यों हुआ है उसकी वजह आप थोड़ा सा समझे। बच्चा अपने घर का एनवायरनमेंट देख रहा है कि मैं जरा सा चीखता हूँ और जो है ना मुझे चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन यही बच्चा जब बाहर जाता है और अपने दोस्तों के साथ चीखता है कि भाई मुझे चीज दो, तो उसका बच्चा जो दूसरे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं भाई हम आपको नहीं देंगे, वो उसके साथ नहीं खेलते, वो उसका कट ऑफ कर देते हैं। तो बच्चा यहाँ पे ये चीज सीख रहा होता है, बच्चा यहाँ पे ये चीज सीख रहा होता है कि यार के घर पे जो उसे क्या होता है ना कि ऐसे समझ लग रहा होता है कि यार हर चीज जो मैं मांगूंगा मिल सकती है। वो जब बाहर जाता है उसे रियलिटी चेक मिलता है कि ऐसा नहीं है कि जो चीज आपको मिले, जो आप चाहो आपको मिल सकता है। तो बाहर के बच्चे उसे सिखाते हैं, तो फिर जब वो घर में आता है ना तो इस बात को समझ जाता है यार ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज जिद कर लूं और मुझे मिल जाएगी, मुझे जो चीजों को देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब बच्चा बाहर जाता है, आप सबको आइडिया है कि हर बंदे की बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। आप लोग कभी फील कीजिएगा जब आप आधे घंटे का अच्छा वर्कआउट करें, कभी वॉकिंग करें, कुछ करें, तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा। मतलब आप ऐसा फील करोगे जैसे आपके जहन के ऊपर कोई टेंशन, किसी किस्म की कोई सोच नहीं है। सेम चीज बच्चे के साथ भी होती है। जब वो खेल के आता है, एग्जॉस्टेड होके आता है, तो वो उसके बाद सबसे पहली चीज वो फ्रेश होगा, ठीक है। उसके बाद वो रात में अपने टाइम पे खुद ही सो जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी थकी हुई होगी। वो मोबाइल नहीं जो है ना, वो मोबाइल जो है वो नहीं यूज करके ऑलरेडी उसका माइंड उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। जो जिनके जिनके छोटे बच्चे हैं वो बोलते हैं यार ये सोते नहीं है रात में, आप उनको करें शाम में लेके जाए पार्क में, उनके साथ खेलो, उनको खूब भगाएं दौड़ाएं, आप देखें रात में कैसे टाइम पे नहीं सोते वो। देखिए बच्चों के अंदर की एनर्जी है, वो एनर्जी आप ड्रेन नहीं करेंगे तो वो फिर रात भर जागेंगे। आप ड्रेन कर देंगे तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह वो अपने टाइम पे सो जाएंगे। इमोशनली चीजों के साथ जो फिजिकल चीजें इन्वॉल्व हैं वो यही है कि आपका बच्चा जैसे जैसे जिस जिस फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेता रहेगा, उसकी एक एक जो है इमोशनल मेमोरी और चीजों को इमोशनली चीजों को अंडरस्टैंड करना, समझना कैसे होती हैं चीजें, कैसा बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, वो सब चीजें सीख रहा होगा। आप सोचें, अब आपने सब चीजें कट ऑफ करवा के उसे सिर्फ मोबाइल दे दिया, सोचा आपने सारी इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी कट ऑफ कर दी, अब उसके पास नॉलेज आ रही है लेकिन उसे पता नहीं है कि इस चीज को कैसे डिलीवर करना है। तभी ये चीज हो रही है कि जिन बच्चों के पास नॉलेज ज्यादा होती है वो आपको बदतमीजी से जवाब देके समझा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कैसे रिएक्ट करना है, कैसे समझाना है, सारी चीजें कैसे करनी है। अच्छा, चैलेंजेस सबसे मेन चीज कि आजकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं पेरेंट्स को, वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज आती है टाइम नहीं है, ठीक है। लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, सारी चीजें नहीं, लेकिन आप ये बताएं ये टाइम उस वक्त कहाँ से हमारे पास आ जाता है जब हमारी हेल्थ जो है बिल्कुल रिस्क पे होती है और हमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, हम पूरे पूरे दिन डॉक्टर हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे होते हैं। ये टाइम उस वक्त कहाँ से आ जाता है। तो देखिए टाइम होता है प्रायोरिटाइज नहीं हुई हुई थी चीज, जिसकी वजह से आप इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते। आप इस बात को समझें कि आपकी बॉडी ऐसी चीज है, उसे आप जितना इस्तेमाल करेंगे ना वो उतना लॉन्ग रन में अच्छा चलेगी। आप उसे जितना यूज नहीं करेंगे वो उतना जो है ना रस्ट लगता जाएगा और आपकी बॉडी खराब होती जाएगी। उसके बाद जो है आपके पास एनर्जी नहीं होती। एनर्जी बिल्कुल लोग ये समझते हैं कि हमारा जो है ना मेडिकल, हम मल्टी वाइटामिन ले रहे हैं और जो हम ताकत की गोलियां ले रहे हैं, सब चीजें ले रहे हैं सॉरी। लेकिन मसला ये गोलियों का और मल्टी वाइटामिन का नहीं है, मसला ये है कि आपकी बॉडी ने कभी इस तरह से वर्क किया नहीं है। आपकी बॉडी कभी जो है एफर्ट्स करने के लिए बनी नहीं थी। आप सॉरी आपने अपनी बॉडी को कभी एफर्ट्स करने के लिए यूज टू बनाया ही नहीं था। तो अब यहाँ पे आके इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो डिसऑर्डर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिस्म बनाया बहुत जबरदस्त है और ये हर टाइम पे हर वक्त पे अडॉप्ट कर सकता है, बट हर एज के साथ साथ उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है अडॉप्ट करने की, लेकिन हर टाइम और हर एज के साथ हर चीज को अडॉप्ट कर सकता है। तो आपने जो है इस बात पे फोकस करना है। आपकी क्योंकि हेल्थ अगर खराब होगी तो सोचें, अक्सर लोग जिनके बच्चे इस एज में बड़े होते हैं कि जब उन्हें कभी दोस्त की जरूरत होती है फादर की शक्ल में, तो फादर उस वक्त जो है वो बेड रेस्ट पे हो, सोचो बच्चा क्या करेगा, फिर वो बाहर जाएगा। और जब बाहर जाएगा तो हमें नहीं पता बाहर के बच्चे क्या ट्रिक, क्योंकि बचपन से आपने उसे बाहर निकलने की आदत नहीं डाली। और जब अब देखें हमारे वाले साहब ने वो अच्छी आदत, वो काफी हार्ड वर्क करते थे, लेकिन जब भी वो घर आते थे ना तो हमारे साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते थे, खेलते थे वो। तो उससे हम हमारे जो वाले साहब से रिलेशन है वो दोस्त वाला है।
वो अब्बू वाला नहीं, दोस्त वाला है। मैं अभी भी अपने वाले साहब से जब बात करता हूँ तो मैं अपने अब्बू के कोई भी काम को ना बड़े प्यार से मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरे उनसे दोस्ती वाला रिलेशनशिप है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू इस बात को समझते भी हैं। तो ये रिलेशन बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के साथ फिजिकली टाइम स्पेंड करें, और उसके लिए जरूरी आप फिजिकली फिट हो। एक्सरसाइज पार्टनर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, वेदर नहीं है। लेट सपोज आप बोलते हैं कि सारे मसले मसाइल हैं, मेरे पास पार्टनर नहीं है, और जो है मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है, या फिर आप बोलें कि मेरा वेदर बहुत, देखें ये सारी चीजें जो है ना, हम इस बात को समझें। क्या सर्दी में हम खाना छोड़ देते हैं? अगर कोई हमें खाना बना के देने वाला ना हो तो हम वे आउट निकालते हैं ना। अगर कोई हमारे साथ खाना खाने नहीं जाने वाला हो तो क्या हम तब भी खाना खाते हैं? हम हर चीज कर होते हैं। लेट सपोज सर्दी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, हम खाना की वो चेंज कर, नेचर चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज अगर मैं गोश्त खा रहा था तो गर्मी ज्यादा है तो मैं शायद सब्जी पे शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन मैं खाना खा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है मैं खाना खत्म कर दूंगा। तो ये चीज है कि हम इस बात को नहीं समझ रहे कि एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सरसाइज की जब इंपॉर्टेंस आपके जहन में आ गई, आपको समझ में आ गया इसका फायदा क्या क्या है, तो इंशाल्लाह सर्दी गर्मी फिजा बाहर वटेवर कुछ भी जा रहा होगा, लेकिन आप अपनी एक्सरसाइज के थोड़ा सा पैटर्न चेंज करोगे, लेकिन आप जो है एक्सरसाइज जरूर करोगे। बच्चों के साथ सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है? स्क्रीन टाइम। के बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, एक ये बहुत ज्यादा है। उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं, जैसे कि अक्सर सोसाइटीज में कोई जिम नहीं होते, या फिर जो कोई स्पोर्ट्स की कराटे की क्लासेस नहीं चल रही, या फिर जो है आप बोलें कि पार्क्स नहीं है, इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। फिर उसके बाद हम डर होते हैं, यार हमारे बाहर का माहौल कैसा है, मैं बच्चे को बाहर छोड़ूं, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, किस तरह से लेके चलूं, और जो है गिर गया बच्चा तो क्या हो गया। तो अब आप इस बात को समझिए। देखिए आपका जो बच्चा है, क्या आपने सारी जिंदगी, अगर आपका प्लान यही है कि यार मैं इस बच्चे को जो है घर में रखूंगा, नहीं, आपने बाहर निकालना होगा। जब बाहर निकालना ही है तो अभी से कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर उसे बाहर जाने की इजाजत है, चीजों को फेस करने की इजाजत है। जहाँ पे अगर आपकी कोई एक्टिविटी है, गुड है, आप उसमें उसको एडमिशन दिलवाएं। स्कूल में गेम्स हो रहा है तो बच्चे को बोलो उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता है ये सारी चीजें नहीं, तो आप खुद अपना टाइम निकालें, ठीक है। आजकल बहुत सारे ऐसे गेम्स भी आ रहे हैं जिसमें आपकी फिजिकली मूवमेंट जरूरी होती है, वो फिजिकली मूव करके आप उस गेम को प्ले करता, आप वाले गेम ले लें, ठीक है। कुछ भी करें, लेकिन फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बच्चे को स्क्रीन टाइम का ऑल्टरनेट दे रहे होंगे एक इंटरटेनमेंट की शक्ल में, फिजिकल एक्टिविटी अपना टाइम अपने साथ लगा के, तो बच्चा स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली कम कर देगा। लेकिन अगर आप बच्चे को बोलें कि नहीं तो मोबाइल यूज ना करो, उसे पूरे दिन पढ़ते रहो, सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बच्चे हैं, वो रोबोट नहीं है कि आपकी बात फौरन मान लेंगे। उन्हें एक्टिविटी चाहिए, उन्हें इंटरटेनमेंट चाहिए। तो आपने क्या करना है, उन्हें फिजिकल ऑल्टरनेटिव देने हैं, उसमें खुद भी पार्टिसिपेट करना है। तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है ना खुद ब खुद स्क्रीन टाइम से ऑटोमेटिकली हटता जा रहा है। स्ट्रेटेजीज क्या है, मतलब क्या क्या चीज है? देखिए, एक तो ऊपर चीज मैंने मेंशन की, आपने मोबाइल बंद, एक होता है कि मोबाइल आपने बोला मोबाइल छोड़ दे, एक है आप बोलिए मोबाइल अभी रख दो, अभी हम जो है मिलके कोई गेम खेलते हैं। आप पिकनिक पे गए, साथ पिकनिक पे चले गए, आप जो है उसके साथ आप क्या करें, आप पिकनिक पे गए, आप सुबह में अक्सर छोटे खवातीन ही कंप्लेंट करती है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करने देते। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर आपके बच्चे चलने वाले हैं 2 साल की एज में, 2.5 साल की, 3 साल की एज में, तो जब आपको एक्सरसाइज करता हुआ देखेंगे तो वो बहुत इंजॉय करते हैं, बल्कि वो आपको कॉपी करती है। इस एज से ही ना आपके बच्चे, क्योंकि मेरी बेटियां जब मुझे देख रही होती हैं तो वो एक्सरसाइज कर रही होती हैं, वो स्ट्रेचिंग कर रही होती है, मतलब बहुत छोटी है, जो छोटी बेटी 2.5 साल की, लेकिन वो एक्सरसाइज कर रही होती है। बोले पापा देखिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे देख रही है, वो मुझे देख रही है, इसीलिए जो है वो उस चीज के ऊपर जो है ना वो वर्किंग कर रही है। सबसे पहला काम स्ट्रेटेजी बच्चों के मामले में, रोल मॉडल में, जैसे मैंने मेंशन किया, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं कि आप हीरो हो बच्चे की नजर में फिजिकली। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप जो एक्टिविटी करेंगे, सुबह पार्क जा रहे हैं, पिकनिक पे लेके जाएंगे, उनका गेम्स खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, और 10 तरह की चीजों में फिजिकली उनके साथ इन्वॉल्व होंगे ना, तो बच्चे का आप देखते रहेंगे खुद ब खुद स्क्रीन टाइम कम होता चला जाएगा। उसके साथ साथ बच्चा जो है अपने रूटीन से सोना उठना खाना ये सारी चीजें करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपको जब बॉडी की रिक्वायरमेंट बच्चे को मिल रही है एंटरटेनमेंट की शक्ल में, तो फिर उसे किसी और चीज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर फोकस करें कि आपने जो है इन सब चीजों को फोकस करना है, और जो है अल्लाह भला करे। ओके, सही है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने बच्चों को, खुद बच्चों के साथ आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहे,
तो बच्चों को आप लेट्स सपोज पे कराटे, किसी अगर कराटे की क्लासेस चल रही हैं, आप उसमें ले जा सकते हैं, वहां पे एडमिशन करा सकते हैं। इसमें ये ना डरे कि मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी, चोट लगने दें, थोड़ा सा बच्चे को टफ होने दें। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को हर वक्त बचा के रखें। देखिए जितना वो इस एज में, क्योंकि रिकवरी बहुत फास्ट होती है छोटी एज में, आपके बच्चे अल्लाह ना करे किसी की हड्डी टूट गया तो वो रिकवर जल्दी हो जाती है। कोई मसल का स्पैज़म आए वैसे तो यूजुअली बच्चों में नहीं होता इस एज में, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर हो जाए तो वो रिकवरी बहुत फास्ट होती है और बॉडी के अंदर फिर इंजरी से रिकवर होने की आदत बन जाती है। लेकिन अगर आपके बच्चे को कभी जिंदगी में चोट ही नहीं लगी, तो आगे जाके जब बड़ी एज में, कि चोट तो लगनी है ऑब्वियसली, तो जब वो चोट लगेगी तो बच्चा जो है फिर उसकी रिकवरी बहुत स्लो होगी, क्योंकि बॉडी ने कभी इस तरह से पहले कभी काम ही नहीं किया। बच्चों के स्कूल्स में जो है वहाँ पे कराटे क्लासेस होती हैं, उसमें एडमिशन दिलवाएं। स्कूल्स में ब्रेक टाइम है तो वहाँ पे बच्चे को बोलें कि बेटा गेम्स खेलो, मोबाइल यूज ना करो, मोबाइल अलाउ ना करवाएं। स्कूल्स में होना चाहिए कि वो बच्चों को ब्रेक टाइम में कोई ना कोई गेम्स में इन्वॉल्व करवाएं, किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। ये ना हो कि आपका बच्चा ब्रेक में, स्कूल्स में इस चीज के ऊपर थोड़ी तवज्जो नहीं है कि वो ब्रेक हुई तो वो बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया। ब्रेक हुई तो क्लास से बाहर निकाल के उन्हें किसी एक्टिविटी में एंगेज करना, ताकि बच्चा फिजिकली किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा हो। और उसके साथ साथ घर में अगर है तो आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि आप खुद भी मोबाइल ना यूज करो, आप खुद फिजिकली अपनी चीज फिट रहने की कोशिश कर रहे हो, एक्टिविटीज देख रहे हो, आप एक्टिविटी में जा रहे हो, आपको जिम जा रहे हो, सुबह में जॉगिंग पे जा रहे हो, वॉकिंग पे जा रहे हो, अगर सर्दी हो तो घर में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बच्चा ये सब चीजें जब देखता है तो वो अडॉप्ट करता है। वो खुद ब खुद उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा होगा कि जिससे जो है वो खुद ब खुद फिजिकली चीजों को लेके चल रहा होगा। उसके अलावा जो है अगर आपकी कोई सोसाइटी है, लेट्स सपोज आपकी कोई कम्युनिटी है, जैसे बाहर कनाडा वगैरह में कम्युनिटी होती है, तो आपने क्या करना है वहाँ कम्युनिटी में कोई इस तरह के इनिशिएटिव लें, किसी कराटे इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया, अगर आपके पार्क्स वगैरह में अलाउ है तो वहाँ पे बच्चों को किसी के घर के अंदर वो क्लासेस अरेंज करवा दी कि सारे बच्चों को वहाँ पे एनरोल करा दिया। एक तो आप सबकी फैमिली के बच्चों की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, फिर वो एक जगह पे फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे, तो इससे आपके बच्चे का एक तो सोशल सर्कल अच्छा होगा, सोशली वो स्ट्रांग हो रहा होगा, इमोशनली स्ट्रांग हो रहा होगा, और उसके साथ साथ जो है वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो रहा होगा। अगर ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है, कोई वॉलंटियर करने का कोई मौका आता है, तो वहाँ पे बच्चों को भेजें ताकि वो सीखे, मैनेजमेंट स्किल सीखे, कैसे लोगों को लेके चलना है, कैसे पब्लिक को डील करना है। वो सारी चीज़ें बच्चे को अभी से देखिए, अपने बच्चे को जितना कंफर्ट जोन में रखेंगे उतना आप उसके लिए अच्छा नहीं बुरा करेंगे। जितना उसे टफ एनवायरनमेंट में देंगे सपोर्ट के साथ, इंशाल्लाह आपका बच्चा उतना स्ट्रांग होगा, उतना स्ट्रांग होगा। आई थिंक मैम लास्ट स्लाइड पे मूव करें, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम्म, ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए आप गूगल करेंगे, जब ये सवाल आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारी जगहों से ना कि 75 मिनट्स इन अ वीक करना चाहिए हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, और लो पेस पे 150 मिनट्स करनी चाहिए। देखिए ये सब चीजें ना कोई जनरल जवाब नहीं हो सकता, जनरल जवाब नहीं हो सकता इस चीज का, क्योंकि मिसाल के तौर पे एक मजदूर है जिसका डेली काम ही लोड लिफ्ट करना है, तो उसके लिए 70 और ये 150 दोनों रूल फेल होगी कि ऑलरेडी वो डेली एक्सरसाइज में है। तो अगर वो इतनी एक्सरसाइज करेगा उसके लिए नुकसान हो जाएगा। और मिसाल के तौर पे एक ऐसा बंदा है जो सुबह से रात तक लेटा ही रहता है और खाता रहता है, उसके लिए ये 70 मिनट्स इन अ वीक कुछ भी नहीं है। ये मिक्स एंड मैच है, मतलब आपको क्या करना है कि आपका डेली का लाइफस्टाइल ऐसा हो। आजकल बहुत अच्छी एप्लीकेशन आ गई है जिसमें स्टेप काउंट करने का, तो आपका डेली का टारगेट हो कि यार डेली के मेरे 5,000 से 10,000 स्टेप्स लाजमन होगा। ये बहुत ज्यादा नहीं बोलना, बहुत कम है ये आपको लग रहा है अभी ज्यादा, क्योंकि हम लोग मूव करते नहीं है। डेली से 5 से 10,000 स्टेप्स हो रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं जो हूँ जिम या किसी एक्टिविटी में आधा घंटा अगर डेली दे रहा हूँ, दैट इज इनफ फॉर मी। क्योंकि जो लोग जिम जा रहे होते हैं बिल्ड बनाने के लिए, उनका गोल अलग होता है, उन्होंने मसल बहुत ज्यादा गेन करने होते हैं, तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे होते हैं। लेकिन एक नॉर्मल बंदा जिसको सिर्फ मसल्स को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए आधा घंटा डेली का इनफ है, उसके साथ साथ डेली के 10,000 स्टेप्स इनफ है। आई थिंक मैम दैट्स ऑल। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हैं। okay. All right. So thank you, Brother Saad. I think it was very informative. I'll just ask you 2 questions and then आप फिर सबके, everybody's invited to ask the questions.
So my first question is Barasat कि काफी लोग जो है ना उनके वो कहते हैं हम घर में इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं स्टेप्स पे, हम ऑफिस में को वॉक करके चले जाते हैं. फरीदाबाद से हाँ? So my question is कि when we are doing these normal activities, कोई कहते हैं हम ऑफिस में ऊपर नीचे स्टेप्स पे जाते हैं, लिफ्ट नहीं यूज करते, is that enough? Is that enough? हम कह सकते हैं कि घर में हम we are running around with the kids and everything. Is it enough for exercise? Can we say we've done it? देखें, मैं इसका आपको जवाब इस तरह से दूंगा कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप जैसे जैसे एज करते जाएंगे तो आपकी बॉडी मसल लूज करना शुरू कर देगी, और मसल को मेंटेन रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है कि आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसके ऊपर लोड डालना. ठीक है, अगर आप डेली घर के अंदर ऊपर नीचे चलना फिरना कर रहे हैं तो बॉडी उससे थक नहीं रही. ठीक है, उसका डेली रूटीन है. ठीक है, इस तरह अगर आप करते रहेंगे तो आप इस रूटीन के लिए ऊपर नीचे करने के लिए तो सही है, लेकिन जैसे जैसे आप एज करते जाएंगे आपकी बॉडी मसल गिराती चली जाएगी. ठीक है, और जो है आप जो इन दी एंड ये करने के भी काबिल नहीं रहेंगे. एक और चीज ये है कि देखिए, एक है आप अगर कोई न्यूज पढ़ रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर, आप वो न्यूज पढ़ते हैं और आप घर में बैठ के न्यूज पढ़ते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस होता है. डिफरेंस होता है जब घर में बैठ के पढ़ते हैं फुल फोकस होकर पढ़ रहे होते हैं और आप चीजें ज्यादा गेट कर पा रहे होते हैं. सेम विद एक्सरसाइज कि जब आप फोकस होके टाइम निकाल के कोई चीज करते हैं उसकी बॉडी रिजल्ट अच्छे निकालती है. अगर वो यानी कि समझने कि अगर मैं पूरे दिन अनइंटेंशनली पूरे घर में भागा दौड़ी कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी उसके रिजल्ट्स उस तरह से नहीं निकाल रही. लेकिन अगर पूरे दिन में से आधा घंटे 45 मिनट में फोकस होकर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी उसके जरिए जो जल्दी रिजल्ट्स मुझे देगी. Okay, I understand. I think one more question पूछना चाहूंगी कि कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत ही मोटिवेशन डाउन होती है, maybe we're tired or we are feeling कि बहुत काम है, तो उस वक्त क्या करें इस चीज को? How should we handle it? Is it okay to leave it for a few days? What is the best approach? अच्छा, ओके. बेसिकली ये तब होता है कि जब यूजुअली अगर कोई है, लेट्स सपोज कोई स्टार्ट करता है रूटीन के, मुझे मैं कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ और डे 1 ही उसके साथ ये होना स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन कि उसका माइंड उसे अलाउ नहीं कर रहा. ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर एक शख्स ऐसा है कि जो ये एक केस हो गया, इसमें ऐसे शख्स को अपनी लिमिट पुश करनी चाहिए क्योंकि इसकी बॉडी लेजी हो चुकी है, इसे पुश करना पड़ेगा. अगर ये पुश नहीं करेगा तो ये कभी भी ट्रैक पे नहीं आ सकता. ठीक है, ये एक केस हो गया. सेकंड केस ये है कि बंदा डेली एक्सरसाइज कर रहा है, कभी कभी जो है ना वो बहुत थक गया है. ठीक है, लेट सपोज वेदर चेंज हो गया, गर्मी आ गया, वो बहुत थक रहा है, तो ऐसे केस में अगर वीक में वो एक दिन ऑफ ले ले कोई इशू नहीं. जिस तरह हम एक दिन एक्सरसाइज करने से हम पतले नहीं हो जाते, हम बिल्डर नहीं बन जाते, हम फिट नहीं हो जाते, इसी तरह अगर एक दिन हम रेस्ट ले लें तो कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा. लेकिन अगर वीक में 3-4 दिन ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील कर रहा हूँ और मैं बहुत थक रहा हूँ, इट्स मीन कि मसला आ रहा है या फिर मैं अपनी डे के स्टार्ट में एनर्जी का कंज्यूम कर रहा हूँ, या फिर मेरे जो एनर्जी मुझे चाहिए प्रॉपर वो मैं खा नहीं रहा हूँ. तो उसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप क्या करें, आप ट्राई इस तरह करें, अगर 1 घंटे बाद आपको कहीं एक्सरसाइज करने जाना, आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आप लेजी फील कर रहे हैं, आप क्या करें, आप कॉफी पिए. ठीक है, और उसके साथ आपने 2 बनाना खा लेने. अगर किसी को शुगर के इशू नहीं, कॉफी और 2 बनाना खा लें, आप आधे घंटे वेट करें, रेस्ट करें, और आप देखिए आधे घंटे के बाद आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे कि वो उससे आप कोई भी एक्सरसाइज करवा दें, तो वो रेडी हो जाएगी. टाइम्स एनर्जी की वजह से डाइट हम प्रॉपर नहीं ले रहे होते, तभी बॉडी जो है ना वो वीक होती है. जैसे कि हम अक्सर ये होता है, लोग जब डाइटिंग पे आते हैं, उन्होंने वेट लॉस करना होता है तो वो खाना कम खा रहे होते हैं, तो ऐसे केसेस में फिर हमें कुछ ऐसे चीजें खानी होती है जो कम खा के हमें बॉडी को एनर्जी देते हैं. वो तो वो यही चीजें कैफीन होती है, कैफीन हमें एनर्जी देते हैं. उसके साथ साथ जो है अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लें जैसे कि केले में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और हम कोई भी एक्सरसाइज के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कार्बोहाइड्रेट एक्सरसाइज से पहले नहीं लेंगे तो आप ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं कर सकते, आपकी बॉडी वेट लिफ्ट ही नहीं करेगी. जब वेट लिफ्ट नहीं करेगी तो आपके मसल मेंटेन नहीं होगा बल्कि उल्टा लॉस होगा. आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन. Yes, it does answer. Thank you very much for answering that question. I got it, and I'll put back things I've stopped doing. आपकी बात के बाद मुझे समझ आ गई. I need to go back onto my training programs जो
I dropped off a little bit. Okay, thank you, Brother Saad. And now we'll take the questions from our audience. Brother Abdullah, please unmute करेंगे Sister Shazia? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी अच्छा, मेरे 2-3 सवाल हैं एक्चुअली। पहला सवाल ये है कि जिम के लिए टाइम कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, मॉर्निंग का कि इवनिंग का? कि इट डिपेंड्स अपॉन योर स्केड्यूल के जब आपको टाइम मिले। और द सेकंड क्वेश्चन इज के ये जो आई मीन जिम करते हुए प्रोटीन ड्रिंक्स या वैसे ही जो सप्लीमेंट्स वगैरह या प्रोटीन ड्रिंक्स वगैरह, उसके बारे में अक्सर ये सुनने में आता है कि जी ये आई मीन लिवर को डैमेज करते हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है, क्या ऐसा होता है? और द ठीक थर्ड है। क्वेश्चन इज कि आपने फोकस की बात की कि जिम करते हुए आप फोकस रहें। तो मैंने फोकस से आपकी क्या मुराद है? आई मीन यू कांट हियर एनीथिंग, अगर कोई पॉडकास्ट वगैरह आप सुन रहे हैं जिम के दौरान, या आई मीन फोकस से आपकी क्या मुराद है? इसको थोड़ा एलेबोरेट कीजिएगा। सही है, ठीक है। ओके, मैं आई लास्ट मीन जिम क्वेश्चन से करते हुए आप स्टार्ट कुछ करता सुन भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते एग्जैक्ट, बस आपका एक्सरसाइज की तरफ भी ध्यान होना चाहिए। ये आपकी मुराद है? हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक्सरसाइज करते हुए लास्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे मेन चीज होती है माइंड मसल कनेक्शन। बेसिकली माइंड मसल कनेक्शन के बगैर आपके मसल्स के ऊपर विजिबिलिटी अच्छी नहीं आएगी। यानी कि आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, आपका साइज भी ग्रो हो रहा होगा, लेकिन वो जो मसल्स की विजिबिलिटी ना वो लैक होगी, क्योंकि वो आपका माइंड जो है ना वो फोकस, जिसमें आपने कुछ एक्सरसाइजेस के नेम्स आपने सुने, कॉन्सेंट्रेशन कर, ठीक है। तो बेसिकली वो है यही कि आपकी ठीक है। बॉडी जब आप फोकस होके करते हैं ना, तो माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रांग होता है, फिर आप मसल को प्रॉपर फील कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। तो जब वो ये सब चीजें, क्योंकि मसल को ग्रो करने का सबसे बेहतर जो एक प्रोसीजर है वो ये स्ट्रेच होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपेंड होना, ये सारी चीजें होंगी तो मसल ग्रो करेगा। ये नहीं होंगी तो चीजें ग्रो, आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली आपको भी पता है कि जब मैं पॉडकास्ट सुनते सुनते एक्सरसाइज करूंगा ना, मुझे पॉडकास्ट कुछ समझ आएगा, ठीक है, ना मुझे एक्सरसाइज प्रॉपर हो सकेगी। तो बंदा वन थिंग एट अ टाइम कर ले। और वैसे भी मल्टीटास्किंग जो है ना वो आजकल फायदे की जगह नुकसान क्रिएट कर रही है। तो क्योंकि लोगों का फोकस का मसला आ रहा है, आपको जो टाइम अटेंशन टाइम स्पान कम से कम होता जा रहा है, उसकी वजह यही है कि हम मल्टीपल चीजों में एक साथ लगते हैं। आप एक चीज कर रहे हैं, प्रॉपर होके करेंगे, इंशाल्लाह आपको ना रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और आप नोटिस करेंगे आपकी एक्सरसाइज जो 45 मिनट्स या 1 आवर में कंप्लीट हो रही थी वो 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, और आप अच्छा फील करेंगे। क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे जिम में, आप ओवर ट्रेनिंग की तरफ चले जाएंगे। आपने अपने टाइम के अंदर अंदर वो उस चीज को कंप्लीट करना है। सेकेंड क्वेश्चन ठीक है। ठीक। जो है प्रोटीन ड्रिंक्स लिवर डैमेज। प्रोटीन लेकिन ड्रिंक्स, हाँ जी। हाँ, प्रोटीन की जब भी आप क्वांटिटी बॉडी में ज्यादा रखेंगे और आप पानी कम पिएंगे तो वो आपके लिवर को वैसे भी डैमेज करेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। आपने जो है ना प्रोटीन के साथ पानी की इंटेक बढ़ानी है, सिंपल है। एक चीज तो ये होगी, एक सवाल तो होगा आप पानी ज्यादा पियेंगे तो मसला नहीं। सेकंड, क्या आपको प्रोटीन ड्रिंक्स पीने चाहिए या नहीं पीने चाहिए? तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रोटीन ड्रिंक्स ना लें। इसका कोई स्टडीज में इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक नुकसान मैं आपको बता दूं, वो क्या होगा कि आपकी बॉडी ना, जिस तरह हमारा माइंड है वो क्या है, वो आसाइश पसंद है। जैसे हम लोग है ना, सुस्ती लेजीनेस, अगर कोई काम आसानी से हो सकता है मेहनत क्यों करूं। इसी तरह जब आपकी बॉडी को एक दफा आदत पड़ गई प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट करने की, ठीक है, तो फिर जब आप उसे एक रॉ फॉर्म में प्रोटीन देंगे तो बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी और आपको डाइजेशन के इश्यूज आ जाएंगे। फिर आपकी बॉडी से वे प्रोटीन के ऊपर ही जो है ना वो रिलाय कर रही होगी। और वे प्रोटीन का मसला एक और भी आता है कि सॉरी सॉरी जी जी, कंटिन्यू Carry करें। on. ओके, तो ये है कि प्रोटीन ड्रिंक्स में वे प्रोटीन होता है जो कि लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, उनको भी मसला कर सकता है। तो मैं खुद भी कोई प्रोटीन यूज नहीं करता हूँ, मैं नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन पूरा करता हूँ। आप खाना एंजॉय भी करें यार, अच्छा है ना, आप टिक्के खाएं और बीफ बोटी खाएं, एंजॉय भी करें, और उसके साथ साथ जो है आप एक्सरसाइज भी करें। प्रोटीन के ऊपर क्यों मैं पाउडर लूं बिलाजे में। लास्ट क्वेश्चन आपका जो कि फर्स्ट था, टाइम। देखिए टाइम सबसे बेस्ट टाइम, अगर लेट सपोज मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपने मसल गेन करना है तो, बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम जो हमारे पास है वो सुबह का नहीं है। सुबह के लिए अगर आपने कुछ करना है तो हल्के स्लो पेस पे वॉक कर ले, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने कोई मसल बिल्डिंग ये सारी चीजें करना है वो आप सुबह ठीक में है। ना करें, क्योंकि हम लोग एम्प्टी स्टमक होते हैं। एम्प्टी स्टमक में जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी मसल लॉस करेगी, क्योंकि आपको भी आइडिया को सुबह में आपकी बॉडी वेट लिफ्ट नहीं कर पाती। लेकिन वही चीज जब आप शाम में करेंगे, आपकी बॉडी ने 2 मील्स लिए हुए होंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होंगे,
तो आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, जिससे आपके मसल ग्रो करेंगे या फिर मेंटेन रहेंगे। Good, thank you very much. That answered, Brother Abdullah, your questions. Go on to. एक सवाल अगर मैं और पूछ सकता Please go ahead. Go ahead. If it's a short one, please go ahead. Are you going to go ahead, Abdullah? हूँ। जी मैं कैन आई प्लीज आस्क, Please ask. जी, कैन यू हियर मी? we can hear you. Please go ahead. जी अच्छा, मुझे ब्रदर साहब से एक और सवाल ये पूछना है कि सेट्स के दरमियान जो है वो कितना टाइम यानी कि रखना चाहिए। फॉर इंस्टेंस यानी कि जिम आप कर रहे हैं और 2 सेट्स के दरमियान में कितना इंटरवल होना चाहिए। आई मीन इसका कोई साइंटिफिकली कोई है कि बस ठीक है। व्हाट योर क्वेश्चन, मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए, इस पे डिपेंड करता है, कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 30 सेकंड्स वेट करे, 1 मिनट वेट करे। जब आप बहुत हैवी लिफ्टिंग कर रहे होंगे तो आप 1 मिनट 1.5 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन जब आप नॉर्मल और आपने मेंटेनेंस के ऊपर आपने मसल से मेंटेन रखना है, तो आई थिंक 30 सेकंड इज इनफ। एक सेट के बीच में 30 सेकंड के इंटरवल इनफ है। थैंक यू। जी सभात, आप बोलें, आप अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बताया कि मसल जो है सुबह निहार मैंने सुना है, बाकी अक्सर ये वीडियोस में ये कहते हैं कि सुबह सवेरे उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आपने जितना बताया कि सुबह उठ के ऐसा मसल गेन करने वालों के लिए होता है या सबके लिए जो ये फॉर्मूला है कि अगर हम सुबह निहार मुँह करेंगे तो मसल लूज होंगे? और वैसे और एक और चीज़ के मतलब हमें जो वेट लॉस करना होता है तो उसमें मैंने कुछ वीडियोस में ये भी देखा है कि मसल स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। मसल्स को ज़्यादा मतलब पावरफुल होंगे तो हमारा वेट जो है जल्दी लॉस होगा। तो वो चीज़ क्या होती है, मतलब किस तरह हमें वो चीज़ ज़रा समझा दें कि कितना करना चाहिए कि हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारा फिर वो वेट लूज करने में मदद करेंगे, मसल को स्ट्रॉन्ग करने में। ओके, अच्छा देखिए, मॉर्निंग रूटीन जो सब कहते हैं ना, तो उसके वजह ये है कि सुबह में ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे होते हैं। मेरे ख्याल में अगर माइक ऑफ कर, Echo आ रही है। ओके ठीक है। तो मॉर्निंग रूटीन में ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि गाड़ियों से ट्रैवल नहीं कर रही थी, तो हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इन्वायरमेंट में नहीं मिल रही थी। इस वजह से सुबह में एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। लेकिन उसका तरीकेकार ये है कि अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो आपने एटलीस्ट 1 आवर पहले कोई ऐसा इतना मील्स आप ले लें कि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। लेकिन अगर आप एम्प्टी स्टमक में जाके एक्सरसाइज करेंगे, कि जैसे अगर आपने मसल बिल्डिंग के लिए करना है, तो उसमें ये होगा कि आप वेट ही नहीं लिफ्ट कर सकेंगे। जब आप वेट लिफ्ट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली मसल मेंटेन ही नहीं करेगी, वो मसल लॉस कर देगी। जब वेट ज्यादा उठ रहा होगा तो इट्स मीन के मसल डेवलप हो रहा है। जब वेट नहीं उठ रहा है, इसका मतलब मसल डेवलप नहीं होगा, बॉडी मसल लूज कर रही है। ठीक है। अब ये जो लोग बोलते हैं सुबह में आप करें, सिर्फ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कर लें, सुबह में आप अर्ली मॉर्निंग जो है ना वॉक कर ले। उसके तरीका है कि आप सुबह में उठे और आधे घंटे आपने इस स्पीड में वॉक करनी है कि अगर आपका कोई साथ हो तो आप उससे इजीली कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। बहुत ज्यादा स्पीड में करेंगे तो मसल लॉस होगा। आपने नॉर्मल पेस पे करनी है तो इंशाल्लाह वो फैट लॉस के ऊपर फोकस करता है, कि अगर आप बात करते हुए जा रहे हो सारी, तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होंगी लेकिन वो आपके मसल्स को नहीं गिराएगा। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल कि ये जो मसल बिल्डिंग करते हैं तो लोग बोलते हैं मसल बिल्ड करेंगे तो वेट लॉस होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि कंपनी में जो है एक वो लोग होते हैं जो हाईली पेड होते हैं, सही, उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा होती हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो कि मजदूर लेवल के या लेबर लेवल के होते हैं, उनकी सैलरीज कम होती है। तो अब आप देखें कि कंपनी जो है, कंपनी के जो एसेट्स हैं या कुछ भी बैलेंस है या कंपनी के जो भी असासे व्हाटएवर मनी के जो भी उनकी चीजें हैं, तो कौन से लोग जल्दी जो है ना वो कंज्यूम कर रहे होंगे। हाईली पेड जितने एम्प्लॉयज होंगे वो ज्यादा अमाउंट लेके जा रहे होंगे, ठीक है, और जो कम पेड वाले एम्प्लॉयज होंगे वो कम अमाउंट लेके जा रहे होंगे। तो आप इसमें मैं अमाउंट जो कह रहा हूँ ना, वो अमाउंट कह रहा हूँ हमारी कैलोरीज को। ठीक है, मसल्स को मेंटेन रखने के लिए बॉडी को ज्यादा कैलोरीज चाहिए, और फैट समझ ले एक ऐसी चीज है स्टोर में पड़ी हुई है, पड़ी हुई, उससे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन मसल को मेंटेन रहने के लिए जो है ना कैलोरीज की जरूरत है। तो आपकी बॉडी में जितने मसल होंगे आपको उतनी कैलोरीज, क्योंकि कुछ मिसालें ऐसी हैं, आपने बोले यार ये कुछ भी खा ले मोटा ही नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि उसकी बॉडी के अंदर जो मसल्स है ना, उसकी मसल्स की कंपोजिशन, फैट और बॉडी का जो कंपोजिशन है, उसके मसल्स की कंपोजिशन में मसल ज्यादा होते हैं, तभी उनकी बॉडी की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उस मसल मास को मेंटेन करने के लिए।
लेकिन जो शख्स मोटा होगा ना, तो आपने देखो अक्सर लोग मोटे होते हैं लेकिन वो मील्स कम खा रहे होते हैं। वो कम खा रहे तो बोलते हैं यार हम पानी भी पी रहे हैं तो जो है ना हमें मोटा कर रहा है। वो बेसिकली वजह ये होती है, आपकी बॉडी में मसल नहीं है, जो भी है फैट ही फैट है। अब बॉडी का समझ ले एक लेबर का तबका भरा हुआ वो तो खत्म ही नहीं हो रहा ना, और आपके पास पैसा बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, लेबर का तबका वो काम ही कुछ नहीं कर रहा है। यानी कि आपने क्या करना है, आपने मसल बिल्डिंग आप फोकस करेंगे तो बॉडी की ऑटोमेटिकली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बन जाएगी। यानी कि मिसाल एक और प्रोसेस से क्लियर कर दूं, सॉरी मैं मिक्स ना हो गया। आपकी रिक्वायरमेंट है डेली की 1000 कैलोरीज, ठीक है। आपकी बॉडी को 1000 कैलोरीज चाहिए ही चाहिए, जो अभी तक आपकी बॉडी की स्टेट थी। आपने मसल बिल्डिंग स्टार्ट और आप डेली जो है ना बॉडी को 1000 कैलोरीज दे ही दे रही थी, तो आपकी बॉडी एक स्टेट पे मेंटेन थी। आपने मसल बिल्डिंग स्टार्ट की और कुछ टाइम में 2 से 3 महीने में आपके इतने मसल्स डेवलप हो गए कि जो है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 1000 से शिफ्ट हो गई 1200 पे। अब लेकिन आप बॉडी को दे कितने रहे, 1000 कैलोरीज से डेली बेसिस। अब आपके पास 200 जो कैलोरीज है इसका डेफिसिट आ गया। अब ये क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता डेफिसिट आपकी बॉडी से फैट परसेंटेज को कम करता चला जाएगा। तो इसलिए बेस्ट अप्रोच यही है, लोग वेट लॉस के पीछे भागते हैं, वेट लॉस के पीछे ना भागे, फैट लॉस के पीछे भागे। आप मसल को मेंटेन करते हुए फैट लॉस करेंगे वो अच्छा है। अगर मैंने खाना पीना छोड़ के एक दिन में या एक हफ्ते में 2 हफ्ते में पतला हो गया, कोई कमाल नहीं है। ये आपको ऐसा जबरदस्त फाइट बैक करेगा, तीसरे हफ्ते में आपको उससे डबल मोटा कर देगा। तो वो स्लो एंड स्टडी पेस पे चले, मसल बिल्डिंग पे फोकस करें। रिजल्ट हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह वो लॉन्ग टर्म पे होगा। Good, that's very good. It's very useful, the answer for everybody, right? Thank you, Subhat, for the question. आप बताएं, Sister Javeria, what is your question? Please ask. मेरा क्वेश्चन इसके ये भाई ने जो बोला उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं तो पानी भी पीऊं तो लगता है मतलब कि वो उसे भी माशाल्लाह सेहत बन रही होती है। ये क्या चक्कर है बोला? अच्छा, मैंने बेसिकली यही आंसर किया था जो आप लोग बोलते हैं ना पानी भी पिए तो लगता है। देखिए इसमें दो चीजें, आपकी बॉडी में जो है ना मसल की जो कंपोजिशन है वो फैट के कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। इसकी निशान क्या है कि निशानी ये साइंस ये है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी, ठीक है। जो मसल थोड़े से हार्ड होते हैं, टफ होते हैं वो। तो आपकी बॉडी में जो है ना एक तो मसल की कंपोजिशन कम है, एक चीज ये। दूसरा आपका ये माइंडसेट है, ये जो आप सोच रही है ना कि मैं पानी भी पी रहा हूँ तो पी रही हूँ तो लग रहा है, ये मसला है सबसे बड़ा। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप ऐसा सोचे ही नहीं। आप सोचे कि भाई मैं नॉर्मल बस मैं अपनी एक्सरसाइज करूंगी, मैं अपने जो है मसल बिल्डिंग पे फोकस करूंगी, बस बाकी जो मुझे खाना है बस कंट्रोल्ड वे में खाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो मैं, आप मुझसे पूछे मैं कौन सी चीज नहीं खाता, मैं बिरयानी खाता हूँ, मैं सब चीजें खाता हूँ। लेकिन मैं अपने चार्ट को मेंटेन रखता हूँ कि मेरी डेली की क्या अभी मैं, और उसके थ्रू मैं वेट लॉस कर रहा हूँ अभी, ठीक है, फैट लॉस कर रहा हूँ। बिरयानी ये सब चीजें खाते हुए कैसे कि मैं अपनी कैलोरीज मेंटेन कर रहा हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट है 2200 कैलोरीज, लेकिन मैं अभी 1500 पे लेकर आया हूँ। बस मैं क्या करता हूँ, अपनी पसंद की चीजें खाता हूँ, प्रोटीन की क्वांटिटी को मेंटेन रखता हूँ, जो मुझे खाना होता है मैं खाता हूँ, और मेरी बॉडी जो है फैट लॉस कर रही है। ये तरीका ये ऐसा नहीं है कि मैं बॉयल खाने खा के ही फिट रह सकता हूँ, मैं सब चीजें खा के फिट रह सकता हूँ, लेकिन बस मुझे मेंटेन करना होगा क्या खाना है कितना खाना है। तो आप अपनी सोच बदलें, आपके लिए पहली चीज ये, आप अपनी सोच बदलें। उसके साथ साथ जो है ना आप मसल बिल्डिंग पे फोकस करें, इंशाल्लाह आपका मसला जो है ना 6 महीने में रिवर्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा आप फिर वापस उस पर आ जाएंगे, फिर आप भी कुछ भी खाएंगे आपको नहीं लगेगा। लेकिन भाई ये इफेक्ट नहीं करेगा फेमिनिज्म, मतलब फेमिनिन नहीं रहेगा एक वुमेन विद मसल ये कुछ अजीब ही नहीं? सॉरी प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। मतलब मैंने कहा वुमेन विद मसल्स ये टुगेदर अच्छे नहीं लगते? अच्छा 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 अच्छा। देखिए मैं आपको एक चीज समझाऊं, पहले ना अल्लाह की तरफ से ना एक सिस्टम मेंटेन है कि आप कभी भी उतने मसल्स डेवलप नहीं कर सकती जितने एक मेल बॉडी कर सकती है। ये फितरत ही अल्लाह की तरफ से नेचर में बिल्ट इन है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, वो मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप कभी इतने मसल डेवलप नहीं कर सकती, लेकिन क्या आपको मसल्स की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल आपको जरूरत है। आपकी बॉडी हर वो काम, चलना फिरना उठना बैठना, मसल्स की मदद से ही करती है। अगर मसल्स वीक हो गए तो ये सारी चीजें आपके पेनफुल हो जाएंगी, दर्द करेगी, जॉइंट्स में लोड आएगा, तभी लोगों के घुटनों में दर्द होता है, तभी जो है ना लोग झुकने में कमर में दर्द होता है। वजह यही है उनके मसल्स वीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर मेडिसिन पे ले जाते हैं, जबकि इलाज मेडिसिन नहीं है। इलाज है आप उस मसल को ट्रेन करें, उसको दोबारा से पावर दे, तो वो मसल दोबारा अपना लोड उठाना शुरू हो जाएगा, तो आपकी बोन
सेफ हो जाएगी। That's very good. I think Sister Javeria, आपका question answer हो गया, right? You will get on straight away. I have one more question, please. जी बोलिए। भाई मैंने सुना है कि जिस तरह के वेट लॉस के लिए या फैट लॉस के लिए प्रोटीन बेस जो है वो डाइट लेनी चाहिए, ज्यादा प्रोटीन लेनी चाहिए, तो इसमें किस हद तक सदाकत है कि जस्ट अगर हम ज्यादा प्रोटीन ही लें, बाकी सब चीजों को नॉर्मल रखें, या बिल्कुल प्रोटीन पे ही आ जाएं? मतलब कुछ गाइड करेंगे इस सिलसिले में? और कुछ मतलब आप ये फैट लॉस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हों जो मसल बिल्डिंग हो, आप कुछ गाइड करेंगे, बताएंगे? वो भी कुछ गाइड कर दें तो अच्छी बात है, जिनसे मसल देखिए बनते हो और फैट ये लॉस। प्रोटीन, अच्छा, हाई प्रोटीन डाइट जो है ना, ये बिल्कुल सही कहते हैं। असल में प्रोटीन से फायदा क्या होता है? प्रोटीन से फायदा ये होता है, प्रोटीन की जैसे अगर आप गोश्त खाएं, मीट की इंटेक आप जब भी आप बॉडी में मीट की इंटेक करेंगी तो आप नोटिस करेंगी आपको भूख देर से लगेगी, क्योंकि वो डाइजेशन में टाइम लेते हैं। लेकिन अगर आप फ्रूट्स खाएं तो वो आधे घंटे के बाद आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जंक फूड्स के साथ प्रॉब्लम ये है, आपने बाहर जिंगर बर्गर खाया और आधे घंटे में आपको भूख लगती होती है, क्योंकि उसमें कैलोरीज जो है ना वो होती है, लेकिन वो बॉडी को एनर्जी नहीं देती। इसी तरह से ये जो जितने भी प्रोटीन वाली चीज है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहला काम ये करते हैं, आपको भूख देर से लगती है। सेकंड, जब आप अपनी बॉडी के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स कम करते जाते हैं तो आपके जो भूख के ऊपर कंट्रोल है वो वापस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कम करना चाहिए। और वैसे भी जो लोग मोटे होते हैं तो वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट अमूमन ज्यादातर पाए जाते हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी बॉडी के अंदर ना, बॉडी मसल्स लेस कम होने की वजह से जो है ना वो ग्लाइकोजन मसल में स्टोर नहीं कर रही होती। तो आपने तो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना है ताकि आपका वैसी मसला चलने वाला है। ठीक है, वेट जितने लोगों को मोटापे का इशू होता है ना, उनको मसले मसाइल, तो उन्हें वेट लॉस करने के लिए प्रोटीन खाना है ताकि उन्हें भूख देर से लगे। जब भूख देर से लगी तो ऑटोमेटिकली खाना कम हो जाएगा। साथ ही साथ वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो ये जो डाइट है, प्रोटीन की डाइट, उन मसल को स्ट्रेंथ दे रहे, क्योंकि आपकी रिकवरी में सबसे मेन चीज प्रोटीन ही होता है। तो आप एक्सरसाइज कर रही हैं, आपके मसल टीयर हो रहा है, टीयर होने के बाद उसे प्रोटीन जो रिकवर कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है ना आपको इन दी एंड लॉन्ग रन में वेट लॉस की तरफ लेके जाएंगी। एक्सरसाइज कौन सी बेहतर है? देखिए, आप क्या करें, आप बहुत बेसिक सी चीजें, आप वॉकिंग से स्टार्ट करें, 10,000 स्टेप्स, स्टेप काउंटर डालते हैं मोबाइल में, 10,000 स्टेप डेली के कर लें। उसके बाद बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पुशअप्स, स्क्वाट्स और क्रंचेस, ये थोड़े थोड़े करके आप करना स्टार्ट कर दें। बहुत ज्यादा नहीं कि 10,000 स्टेप्स करें और ये सब चीजें आप करना स्टार्ट कर दें, लेकिन ये आप भरे हुए पेट में नहीं करेंगे। एक्सरसाइज से पहले खाना खाना होता है, लेकिन वो पेट भर के नहीं खाना होता है, वो थोड़ा सा खाना होता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाए एक्सरसाइज करने की। सही है, तो आपने 1 घंटे पहले अगर कुछ खा लिया, वही जैसे मैं, आपने चाय पी ली और उसके साथ जो 2 बनाना ले लिए, 1 घंटे के बाद आप ये वर्कआउट करें इंशाल्लाह। बाकी जो है पूरे दिन में 10,000 स्टेप का गोल रखे तो इंशाल्लाह मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। बस टाइम दे, इस बात को समझे कि अगर 10 साल में मैंने एक वेट पुट ऑन किया है तो मैं उसे 10 दिन में खत्म नहीं कर सकता। Good. Thank you, Brother Saad, for answering the question. जज़ाकल्लाह। Brother Khan, please unmute yourself and ask your question. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमजा खान है। मेरा सवाल साद भाई से ये है कि जो लोग टीन एज में होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड गेनर होते हैं, वो कुछ भी खा लें, हालांकि वो लोग एवरेज लोगों से ज़्यादा खाते हैं बट उनकी बॉडी में नहीं लगता। तो उन लोगों को क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि वो मसल गेन कर सके? सही है। देखिए, सबसे पहली चीज, जो टीनेजर्स हार्ड गेनर नहीं होते, बेसिकली टीनेजर्स जो है ना वो एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं। आप अगर अपने स्टेप काउंट अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल करें और अपने पेरेंट्स के मोबाइल में भी इंस्टॉल करें तो इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे गले में भी इन्फेक्शन है, तभी मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीता हूं। अच्छा, आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में और अपने वालिदैन के मोबाइल में स्टेप काउंटर डालना है, और डे एंड पे आके जब आप चेक करेंगे ना, उनके शायद 2,000 हुए होंगे और आपके शायद 1,200, 15, उनके सॉरी जो है आपके 12,000, 15,000 ऐसे स्टेप्स हो चुके होंगे। तो इसलिए आप हार्ड गेनर है, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। सेकेंडली, अभी आपकी बॉडी जो है मसल मेच्योरिटी पकड़ रहे हैं, आपकी बोन्स मेच्योरिटी पकड़ रही है, आपकी हो सकता है कि 22, 23 तक हाइट भी निकलती, हो सकता है आप हाइट भी निकाल रहे हो, आपके सारे भी फीचर्स जो है वो पक्के हो रहे हैं। तो बॉडी की कैलोरी, आपकी जो बॉडी की कैलोरी से वहां पे लग रही है।
आप क्या करें, माई फिटनेस पैल एक एप्लीकेशन का नाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसे इंस्टॉल करें, उसमें अपने रिक्वायर्ड चीज़ें जो है वो डालें, अपनी करंट चीज़ें वो डालें, तो वो सारी डिटेल बता देगा कि आपने इतनी एक और एक सवाल सिस्टम रूल है इनका, तो कि उसमें आपको जवाब मिल जाएगा कितनी आपने कैलोरीज लेनी है आपको टारगेट को अचीव करने, कितने प्रोटीन हो, कितना कार्बोहाइड्रेट हो, साइज से बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। उसमें आप फूड में एंटर करने की बिरयानी भी डालेंगे तो वो बिरयानी की कैलोरीज भी बता देगा, निहारी, पाए, फास्ट फूड, पिज्जा, वट जो भी डालेंगे सब चीज़ों में। मुझे बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मैंने उसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए जो है फैट लॉस किया। 1 महीने के अंदर 3 से 4 जो है ना केजी मैंने सिर्फ फैट लॉस किया। तो आप लोग यूज करें, बहुत इजी है, फ्री एक्सेस, फ्री वर्जन से सारी चीजें हो जाती है। माई फिटनेस पैल नाम है उसका। हमसे इंशाल्लाह आपका मसला भी उसी से सॉल्व हो जाएगा, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। So, Sir, can I ask you, how do you measure the quantity in that app? कैसे करते हैं कि भाई कितनी ओके, बिरयानी? इसके लिए मैंने क्या की थी कि एक छोटी सी 5 kg की मशीन ली थी जो कि 5 kg तक का वेट मेजर कर। मैंने पहले प्लेट रखी और प्लेट का वेट माइनस कर दिया उसमें से, और फिर उसके बाद उसमें मैंने एक जनरल सा अमाउंट के चावल या वटेवर रोटी या सालन डाल के देख लिया, वो मेरे सामने एक फिगर, रफ फिगर आ गया यार इतनी कैलोरीज होगी। तो मैं जितनी भी कैलोरीज आती है उससे ऊपर ही अज्यूम कर रहा था। लेट सपोज 250 कैलोरीज आई तो मैं 300 अज्यूम कर रहा था कि ह्यूमन एरर हो सकता है। तो उसमें सारी चीज होती है, लेकिन अमूमन जो बिरयानी की एक प्लेट है वो 200, 250 या 280 ग्राम्स होती है, तो उसमें ये वाली चीजें हैं। Okay. So quantity बता रही है वो, ये app is telling you the quantity, how much quantity has. क्वांटिटी आप पुट इन करते हैं। हाँ, okay. आपके पास ऑप्शन होता है क्वांटिटी आप पुट इन के। एक रोटी बताते हैं, स्मॉल रोटी इतनी है, बनाना स्मॉल बनाने में इतनी कैलोरीज है, मीडियम में इतनी है, बिग में इतनी है। Okay. All right, good. Any more questions? Thank you, Brother Saad. That was useful. Everybody's got the app name now, right? Yeah. एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन। जी। मैंने सुना है भाई कि बनाना जो है वेट गेन करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। इज इट ट्रू? क्या ये हेल्पफुल होते हैं, खाने चाहिए? अच्छा देखिए, वेट बढ़ने का और कम होने का ताल्लुक किसी भी चीज से नहीं है। वेट का ताल्लुक है कि आपकी रिक्वायरमेंट थी 1000 कैलोरीज डे की, आप 1500 खाएंगे, चाहे बनाना खा के खाएं या प्रोटीन शेक पी के करें या फिर आप जो बॉयल सब्जियां खा के करें, आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि आपने कैलोरीज सरप्लस की है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट थी 1000 कैलोरीज और आपने 800 खाई और सारा जिंगर बर्गर आपने खाया, लेकिन आपकी बॉडी जो है ना वो वेट लॉस करेगी। कैलोरीज के ऊपर सारा वो है, तो मतलब इससे इसका ताल्लुक नहीं, अब क्या खा रहे कैलोरीज। हाँ, खाने से ताल्लुक क्या है कि आप जो खाएंगे वो जो है आपकी बॉडी उसके हिसाब से एनर्जी दे रही होगी। यानी कि एक बंदा जिगर बर्गर खा के जो है ना उसमें एनर्जी नहीं आ रही होगी, लेकिन वही बंदा जो बनाना और प्रोटीन्स खा रहा होगा तो जो है उससे चीजें, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, वो ज्यादा चीजें कर पा रहा होगा। इसको थोड़ा समझाएंगे Brother Saad, how come you're saying कि ये junk food में calories बहुत हैं, and then isn't calorie equal to energy? ये आपने, ये जो आपका सवाल है ना कि कैलोरीज, बेसिकली इसके अंदर जो है ना, जब हम कोई भी फ्राई करते हैं, लेट सपोज एक बॉयल आलू लेते हैं, उस बॉयल आलू में लेट सपोज 90 कैलोरीज है, लेकिन जैसे ही हम उसे फ्राई करते हैं ना, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और जो है प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही मैं इसे फ्राई करूंगा तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की क्वांटिटी कम हो जाएगी और फैट जो है ना उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और फैट जो है वो फैट भी ऐसा होगा हमारी बॉडी में डायरेक्ट जाके फैट स्टोरेज बनेगा, वो यूजफुल नहीं होगा। इसलिए कैलोरी ज्यादा हुई और ज्यादा जाके सीधा जाके वो आपकी बॉडी के फैट स्टोरेज में जमा हो जाएगा। Right. और बॉयल चीज वो प्रोटीन ज्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट जो कि यूज होगा। यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी फौरन यूज कर लेती है, और जो फैट है वो अमूमन बॉडी सेव करती है। जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी बॉडी को फैट की जरूरत पड़ती है रिकवरी और रिपेयरिंग, इन सब चीजों के लिए। I got it. Yeah. Okay. अब्दुल्ला का शायद एक और क्वेश्चन है। जी बोलें अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, ये ब्रदर साद से मैंने ये पूछना है कि इस सेट के शाम के वक्त जो है वो जिम, अगर आपने वेट गेन करना है तो शाम के, या मसल गेन करनी है तो शाम के वक्त वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सोने से कितनी देर पहले जो है वो जिम बेहतर है? और दूसरी बात ये कि खाना जो है
डिनर वो जिम से पहले किया जाए, आधा घंटा पहले, या उसके बाद करना भी ठीक, यानी कि क्या उसका वो सही। स्केड्यूल रखा जाए? देखिए, खाना आपका लास्ट मील पाकिस्तानियों के लिए 9 बजे हो जाना चाहिए। 9 बजे लास्ट मील हो जाए, इससे लेट करेंगे तो वो आपको डाइजेशन इश्यूज और फैट के इश्यूज आएंगे। 9 बजे से पहले आपका खाना हो जाए। और जिम से तकरीबन जो है आप ठीक है, तो तकरीबन जिम से जो है ना, आप आपका पहला सवाल क्या था, सॉरी? कि जिम, आई मीन पहला सवाल ये था कि जिम जो है उसकी टाइम क्या हो, सोने से पहले कितनी कितनी देर पहले जो है जिम हाँ, की जाए? सोने से 4 घंटे पहले लास्ट आप जिम होके आ चुके हो। क्योंकि अगर आप दो क्योंकि घंटे जिम पहले तो जिम आमतौर पे जाएंगे जाहिर है। 2 घंटे पहले अगर आप जिम जाएंगे तो उससे आपकी बॉडी जो है नींद उड़ा देगी। आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन सारी चीजें रिलीज हो जाएंगी, तो फिर आपकी बॉडी जो है ना, फिर वो एक्टिव हो जाएगी दोबारा से। वो काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। तभी कहते हैं जो लोग सुस्त हो रहे हैं ना, जिम जाके ना वो फ्रेश हो जाते हैं, वो यही होता है। आपकी फिर नींद उड़ जाएगी। तो आपने 4 घंटे पहले जो है ना वो एक्सरसाइज कर लेनी है सोने से। अगर आप 4 घंटे के 2 घंटे पहले करेंगे तो चांसेस आपकी नींद डिस्टर्ब होगी लाजमन। और डिनर के बारे में आप क्या कह रहे हैं, जिम से पहले के बाद? डिनर मैंने आपको बताया, डिनर अगर आपने जिम से पहले लेना है तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले डिनर अगर वो है, क्या प्रॉपर मील ले लो, ठीक है। 2 घंटे पहले हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। बस मेन चीज लास्ट मील आपका 9 बजे से पहले हो जाए। 9 बजे के बाद जो है वो लेट है, वो फिर डाइजेशन इश्यूज करेगा आपको। Thank you. Thank you, brothers. ठीक है, ठीक। I think it's been a very, very helpful session. We should start winding it up. कोई और question बहुत ज़रूरी है तो पूछे, नहीं तो we move towards how do we progress. I just want to take an idea कि आप एक तो survey form भरें. There's a survey form being put, Atif, on the net. Everybody, we want to know आपको कैसा लगा है आज का सेशन. वी ऑल्सो वांट यू टू बी अप्लाइंग जो ब्रदर साहब ने भी लिखा है, बोला है. I have a question. ओके, गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना है कि हमारे जो खाने का जो पैटर्न होता है, अगर कोई लोग जैसे नाश्ता बहुत अच्छा करते हैं, फिर लाइक कपल ऑफ आवर्स कुछ नहीं खाते, फिर अच्छा लंच खाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो स्मॉल पोर्शंस में खाते रहते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस है हेल्थ के लिहाज से, या बोथ आर फाइन? सही है। ओके। देखिए, इसका ऐसा है कि जो लोग स्मॉल पोर्शंस में खाते हैं ना, उनको डाइजेशन के इश्यूज अमूमन कम आएंगे, क्योंकि उनके वो स्टमक पे एकदम से लोड नहीं डालते। और जो लोग लार्ज मील्स लेते हैं ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे दीन में भी है 3 हिस्से रखो, खाने का, पानी का और हवा का। तो अगर आप बहुत बहुत ज्यादा जो है ना, अगर आप मील्स लेंगे तो आपके स्टमक पे एकदम से लोड होगा, तो आप फौरन लेथार्जिक फील करेंगे और आप लेजी फील करेंगे। तो बेहतर है कि आप स्मॉल पोर्शंस में लें। सही है, स्मॉल पोर्शन में लिए। अगर आप बोलते हैं मेरे पास टाइम 2 मील्स का है, तो 2 मील्स लें, लेकिन वो जो है थोड़ा सा आपके उसमें बहुत ज्यादा हैवी ना हो वो। Okay, good. All right, so please fill in the survey form. We're going to wind up this session. We do need your आपका हमें चाहिए views. We also need to know कि आपके और क्या questions हैं, because if you feel there should be another session on this area, we would like to know that as well. और भी कोई areas हैं जिस पे आपको interest है, so please feel free to answer in the survey form. Survey form का link आ गया आपके पास. Groups में भी हम डालेंगे, लेकिन when you go away, you don't do it. So please do it now. It just takes a few minutes. खोलें और उसको भरें. It's going to take you less than a minute to do it. हम लंबी कहानियां नहीं पूछ रहे आपसे. Yes, it is certainly, हम सबकी दुआ है कि we get physically fit, as we talked about it, कि आप की spiritual health depends on your physical health. So that is one of the reasons कि बरसात को हमने कहा कि हमारा यहाँ पे give us some knowledge so that we all want to rise spiritually, and part of it is to get our physical health, because that will help us in getting spiritually to high levels. And of course, you have to continue with your training. उसमें भी हम cover कर रहे हैं body की area को. So if you finish the control side, you go on to
know yourself and get your body part, mind and emotions, सब के बारे में you will learn more. So please continue with that, and inshallah you will get higher and higher level of consciousness. So I think I would like to, Sister Farhana to speak now. Sister Farhana, would it be possible to just, briefly speak about what is our mission and what we are aiming for and how can we get there faster? Yeah. Assalamu alaikum. Jazakallah khairan everyone for attending. Jazakallah khairan, Brother Saad, for giving us very good, information regarding the how to keep your body fit, and this is so very connected with our whole well-being, inshallah. So this is was presented to you as a part of the VOTP, series of sessions. And, as Sister Faida explained in the beginning, the whole purpose of VOTP is to raise, Muslims and every other individual, to know who they are and, reach to the highest potential of themselves, as well as finally be able to contribute to the community and make this world a better place. So that is the vision of VOTP. Please check out the website of VOTP. We will put it in the in the chat as well. And if you have any questions, please feel free to reach out to us. Jazakallah khair. Thank you, Sister Farhana. Over to you, Sister Shazia. Yes, Jazakallah khair. To be honest, मैं expect नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा और इतना informative ये session होगा, और मुझे लग रहा था कि शायद ये औरतों को एक्सरसाइज की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली और अपना सब ने आज एटलीस्ट आज तो सब ने सोच लिया होगा कि हम एक्सरसाइज जरूर स्टार्ट करेंगे. जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर साद एंड एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर. नेक्स्ट हमारी सेशन जो है नेक्स्ट ट्यूसडे हमारा सेशन नहीं रहेगा ट्यूसडे को, और उसके बाद कब है? थर्सडे का इंशाल्लाह. तो थर्सडे को Tuesday का session we are not doing it because of the internet lines का कुछ they get stopped in Pakistan, so we thought we'll go on to inshallah on Thursday we'll do the session knowing Allah Ta'ala and knowing yourself. We'll have part 2 of that with Sister Farhana. Yeah, inshallah. That's the announcement. Yeah, that's it. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज. और आई होप के नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे आप यकीनन अपने कैमरास अपने जो हैं वो ओपन कर देंगे. Yeah, that's it. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.